أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صدق الله العظيم۔ الحمدللہ بھی آپ کے سامنے سورہ نساء کی 2 آیات کی تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی، آیت نمبر 69 اور آیت نمبر 70۔ تو ابھی ہم پہلے ان کا ترجمہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد مفسرین نے جو ان آیات کی تفسیر بیان کی ہے وہ بیان کریں گے۔ ومن، اور جو شخص یطیع، اطاعت کرے گا، یطیعی، اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ کی، والرسول، اور رسول کی، فاولئک، بس یہی لوگ ہیں، مع، ساتھ، الذین، ان لوگوں کے، جن پر انعم، انعام کیا، اللہ تعالیٰ نے، علیہم، جن پر۔ من کا معنی ویسے ہوتا ہے سے، لیکن ہر جگہ سے معنی نہیں ہوتا، دوسرے معنی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، بیان کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے، یعنی کے معنی میں بھی آتا ہے۔ کن پہ انعام کیا؟ یعنی انبیاء پر، والصدیقین، اور صدیقین پہ، والشہداء، اور شہداء پر، والصالحین، اور صالحین پہ، وحسن، اور اچھے ہیں، اولئک، یہی لوگ، رفیقا، ساتھی کے اعتبار سے۔ ومن یطع اللہ والرسول، کہ جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء اور صالحین کے ساتھ۔ وحسن اولئک رفیقا، اور وہ کتنے اچھے ساتھی ہیں، وحسن، اور وہ کتنے اچھے ساتھی ہیں، ذالک الفضل من اللہ، ذالک، یہ، الفضل، فضل ہے، فضیلت ہے، من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وکفا، اور کافی ہے، باللہ، اللہ تعالیٰ، علیما، باخبر ہونے کے لیے، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ باخبر ہونے کے لیے، یعنی لوگوں کے حالات سے پوری طرح باخبر ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ تو یہ ان 2 آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کر دیا، امید کرتا ہوں سب کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اس سے ماقبل منافقین کی مذمت بیان ہوئی، جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پہ راضی نہیں ہوتے تھے، اپنے معاملات کو طاغوت کے پاس لے کے جانا پسند کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ انسانوں کی کامیابی کا دار و مدار اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر ہے، یعنی جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کو، وہ اللہ کے رسول کو اپنا حکم مقرر نہ کرے، فیصل مقرر نہ کرے، وہ کامل الایمان نہیں ہو سکتے۔ اور پھر کل کے سبق میں ہم نے پڑھا کہ اگر اللہ تعالیٰ ان پہ کوئی مشکل حکم نازل فرما دیتا، جیسا کہ بنی اسرائیل کی توبہ کو ان کی جانوں کے قتل کے ساتھ مشروط کر دیا تھا، تو لوگوں کے لیے بڑی دشواری ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بہتری کے لیے ان لوگوں پہ مہربانی فرمائی اور ایسا کوئی حکم نہیں دیا جو انسان کی طاقت سے باہر ہو۔ لہذا ان لوگوں کی بہتری اسی چیز میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئی نصیحت پہ عمل پیرا ہو جائے۔ ایسا کریں گے تو انہیں بہتری، ایمان میں پختگی
अजर अजीम और सिरात मुस्तकीम नसीब हो जाएगा। तो अल्लाह ताला ने इन 4 इनामात का जिक्र फरमाया कि हर नेकी करने वाले के लिए आखिरत में बड़ा अजर है और दुनिया में भी उसे सिरात मुस्तकीम नसीब हो जाएगा, और जिसकी दुआ हर मोमिन हर नमाज में करता है। तो आज के सबक में अल्लाह ताला ने अपनी और अपने रसूल की इताअत करने वालों के लिए 5 इनामात का जिक्र फरमाया है। ये बुलंदतरीन लोगों की रफाकत है जो कि बड़ी ही फजीलत वाली चीज है। फरमाया कि वमन युतिइल्लाह वर रसूल, जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा, अल्लाह ताला तो मुताई मुतलक बिज़ात है, ताहम रसूल की इताअत बिज़ात तो नहीं है, यानी मुस्तकिल नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म के साथ है, यानी वो भी रिसालत की वजह से मुतलकन फर्ज है। तो ऐसे लोगों को खुशखबरी सुनाई गई है, फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम, इन लोगों को अल्लाह ताला के उन कामिलीन की मईयत नसीब होगी, यानी उन कामिल लोगों के साथ होंगे जिन पे अल्लाह ताला ने इनाम फरमाया। और इनाम याफ्ता अफराद जो है वो 4 है। सूरतुल फातिहा की जब हम तिलावत करते हैं कि एहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा दीजिए, सिरातल लदीना, उन लोगों का रास्ता, अनअमता अलैहिम, जिन पे तूने इनाम किया है। अल्लाह ताला ने किन अफराद पे इनाम किया, वो ये 4 अफराद है। तो सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम की तफसीर ये आयत कर रही है। तो जब कुरान की एक आयत दूसरी आयत की तफसीर करे तो उसको तफसीरुल कुरान बिल कुरान कहते हैं। तो मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन, यानी अंबिया, सिद्दीक, शुहदा और सालिहीन है। ये 4 अफराद है, 4 जमातें हैं जिन पे अल्लाह ताला ने इनाम फरमाया है। तो इन्हीं लोगों की रफाकत का तज़किरा है जिनके मुतालिक हर नमाजी सूरह फातिहा में दुआ करता है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, या मैं सीधे रास्ते पे चला, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, वो सीधा रास्ता उन लोगों का रास्ता जिन पे तूने इनाम किया। तो उनका तज़किरा यहाँ पे किया गया कि जिन पे इनाम किया गया वो 4 मेयारी गुरोह हैं, तो इनके अलावा बाकी लोग इनसे कमतर हैं। अब इनामात 2 किस्म के हैं, मादी इनामात भी है और रूहानी भी है। मादी इनामात में तो मोमिन और काफिर वगैरह सब शरीक है, अलबत्ता रूहानी नेमतें अल्लाह ताला के मकबूल बंदों को हासिल होती है, और इनमें सर फहरिस्त अंबिया अलैहिमुस्सलाम की जमाअत है। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह। नबी जो है जिसे अल्लाह ताला अपने मखलूक की तरफ शरई अहकाम की तबलीग के लिए मबऊस फरमाता है, तो वो भी इंसान होते हैं, जैसा कि सूरह अंबिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़ेह फरमाया, वमा अरसलना क़ब्लका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम, कि ए पैगंबर अलैहिस्सलाम, आपसे पहले हमने जितने भी रसूल भेजे हैं सब मर्द थे। रजुल मर्द इंसान या बशर को कहते हैं। को नबी का इंसान होना या बशर होना कोई आयब की बात नहीं है। इस बात का इजहार अल्लाह ताला ने फरिश्तों के सामने भी किया, इन्नी खालिकुन बशरम मिन तीन, कि मैं मिट्टी से बशर को पैदा करने वाला हूं। बशर तो अल्लाह ताला की कुदरत का शाहकार है। इंसान जैसा शरफ किसी और मखलूक को हासिल नहीं है। बहरहाल नबी को मुनअम अलैहिम में से पहला दर्जा हासिल है। मुनअम अलैहिम से मुराद जिन पे इनाम किया है,
اور ये मासूम होते हैं। नबी की मासूमियत जो है उसकी खुसूसियात में दाखिल है, उसको गारंटी हासिल होती है कि उससे गुनाह सरजद नहीं होने दिया जाएगा। अशरफुल मखलूक़ात में से मासूमियत का जो शरफ है किसी दूसरी हस्ती को हासिल नहीं है। मलाइका भी मासूम है, अल्लाह ताला का फरमान है ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, कि वो अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करते जो उन्हें हुक्म दिया जाता है। लेकिन फरिश्ते जो है वो इंसान की तरह मादी मखलूक नहीं है, बल्कि वो लतीफ़ और नूरानी मखलूक है, और इंसानों में सिर्फ अंबिया की जमात ही मासूम है। लेकिन बाद औकात मामूली सी लफ्ज़िश पर भी बहुत बड़ी गिरफ्त जो है वो होती है। हालांकि ऐसी लफ्ज़िश जो है वो सगीरा या कबीरा गुनाह की तारीफ में नहीं होती। तो अहलुस सुन्नह वल जमात का ये मुत्तफ़क़ा मसला है कि नबूवत मिलने से पहले और नबूवत मिलने के बाद अल्लाह ताला अंबिया को मासियत से, गुनाह से महफूज रखता है, और उसकी वजह यह है कि नबी की इताअत मुतलका फ़र्ज है और नबी का हर फैसला काबिल अमल है, इसलिए नबी से कोई गलत बात सरजद नहीं होती। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत में है कि कोई जज या काजी गुस्से की हालत में फैसला ना करे, क्योंकि उस हालत में गलती का इम्कान है। इसी तरह अगर कोई काजी किसी नफ्सियाती बीमारी में मुब्तला है तो उसका फैसला दुरुस्त तस्लीम नहीं होगा। ये सिर्फ अल्लाह के नबी को शरफ हासिल है कि उसके फरमूदात गुस्से और मिजाज की हालत में बिल्कुल सही होते हैं। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने जिन बंदों पे इनाम किया उनमें सर फहरिस्त अंबिया अलैहिमुस्सलाम की जमात है। उनमें सर फहरिस्त अंबिया अलैहिमुस्सलाम की जमात है। सहाबा ने अर्ज किया कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बाज़ औक़ात आप हमारे साथ मिज़ाह फरमाती हैं, तो फरमाया इन्नी ला अक़ूलु इल्लल हक़, ऐसी हालत में भी मैं हक़ के सिवा कुछ नहीं कहता। इसी तरह अगर आपने कोई फैसला गुस्से की हालत में भी किया है तो भी बरहक और काबिल तामील होगा। तो ये नबी की खुसूसियत है कि अगर उससे कोई लफ्ज़िश हो जाए तो उसे खबरदार कर दिया जाता है, लेकिन एक आम इंसान के लिए ये ज़रूरी नहीं है। बहरहाल नबी जो है मासूम अनिल खता होता है और उसकी इताअत मुतलका फ़र्ज है। तो मुफस्सिर कुरान इमाम बैज़ावी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि पहला दर्जा अंबिया का है, वो तक़द्दुस के बुलंदतरीन मकाम पे होते हैं, वो हद कमाल से बढ़ के हद तकमील तक पहुंचे हुए होते हैं, उनमें हर खूबी बज़ाती ही मौजूद होती है, तमाम औसाफ हसना और अखलाक फाजिला के हामिल होते हैं। और दूसरा दर्जा जो है सिद्दीक का है। सिद्दीक का माना होता है सच्चा इंसान, रास्तबाज, जिसको फारसी में रास्तबाज कहते हैं। अहादीस मुबारका में आता है कि मोमिन कौल में, फेल में, वादे में, हर बात में सच्चाई की कोशिश करता रहता है, हत्ता कि अल्लाह ताला के यहाँ वो सिद्दीक लिख दिया जाता है। और इसी तरह झूठे आदमी के मुतालिक भी आता है कि कोई शख्स मुसलसल झूठ बोलता रहता है, यहाँ तक कि वो अल्लाह ताला के नज़दीक कज़्ज़ाब लिख दिया जाता है। तो बहरहाल अंबिया अलैहिमुस्सलाम के बाद दूसरे नंबर पे जो दराजा है जिन पे अल्लाह ताला ने इनाम किया है वो सिद्दीक होते हैं। जैसा कि कुरान मजीद में कई अंबिया के मुतालिक आता है इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या, कि वो सिद्दीक नबी था। अलबत्ता अंबिया के अलावा दीगर मोमिन लोग भी सिद्दीक होते हैं, लेकिन वो दूसरे दर्जे में आते हैं।
इनमें मर्द भी होते हैं और औरतें भी दाखिल हैं। तो ये फजीलत का आला मर्तबा है। तो सिद्दीक जो है ज़ाहिरन और बातिनन कमाल दर्जे का इताअत गुजार होता है। वो अपने कौल में, अपने फेल में और अकीदे में हमेशा सच्चा होता है। जैसा कि आता अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वगैरह। और तीसरा दर्जा जो है शहीद, शहीद का वैसे माना तो होता है गवाह, और किसी मामले में गवाही अमूमन मुशाहिदे की बुनियाद पे होती है और कभी इल्म की बुनियाद पे भी हो सकती है। और इस्लाम में भी कानून शहादत बड़ा अहम कानून है। कुरान मजीद में मुतादद मकामात पे आया है अकीमुश शहादत लिल्लाह, कि अल्लाह के लिए गवाही दे दो। लेकिन यहाँ पे शहीद से मुराद नबी और सिद्दीक के बाद तीसरे दर्जे के वो मुमिनीन है जो हक व सदाकत और ईमान के लिए अपनी जान की बाजी अल्लाह की रजा के लिए, दीन की बुलंदी के लिए लगा दे। उन्हें हक़ाइक़ का मुशाहदा होता है, लिहाजा वो अपने अजीज तरीन मताए जान की कुर्बानी से भी दरीग नहीं करते। उनमें सिद्दीकीन जैसी इल्मी कुव्वत तो नहीं होती, लेकिन उनकी अमली कुव्वत कामिल दर्जे की होती है, जो कि अंबिया की कुव्वत अमलिया का अक्स होती है। तो ये तीसरे दर्जे के मुनअम अलैहिम होते हैं जिन पे अल्लाह ताला ने इनाम किया है। और इनाम याफ्ता लोगों का चौथा गुरोह सालिहीन का है। ये सलाहियत और नेकी के हामिल लोग होते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा में कामिल होते हैं। इन्हें न तो शहीदों जैसा मुशाहिदा हासिल होता है और न सिद्दीकीन जैसा कमाल इल्म। ये दूसरों से बात सुन के यकीन कल्ब के साथ उस पर अमल पेरा हो जाते हैं और उनका जहन शक और तरद्दुद से पाक होता है। वो पूरी जिंदगी कमाल दर्जे की नेकी पे अमल पेरा रहते हैं। तो ये सालिहीन का गुरोह है। जो चौथे दर्जे में आता है, तो कुरान और सुन्नत की इस्तिलाह में सालिह शख्स वो है जो हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद दोनों को अदा करे। तो हुकूक से रूगर्दानी करने वाला शख्स सालिह नहीं हो सकता, चाहे हुकूकुल इबाद हो या चाहे हुकूकुल्लाह हो। तो अच्छे और नेक लोग जो है इन चार गुरोहों के अलावा भी है, मगर वो इनसे कम दर्जे में होते हैं। अल्लाह ताला के इनाम याफ्ता गुरोह ये चार ही है। यही लोग सिरात मुस्तकीम के राही हैं। वो सिरात मुस्तकीम जिस पे चलने की हर मोमिन दुआ करता है। शाह अब्दुल कादिर मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि नबी पे वही नाजिल होती है और उसे हद दर्जे का कुर्ब हासिल होता है, लिहाजा वो आलम बाला की चीज़ों का करीब से मुशाहदा करते हैं। और फरमाते हैं कि सिद्दीक में इंतहाई दर्जे की कल्बी सफाई होती है, उसमें फ़ज़ाइल की बहुतात होती है, रज़ाइल उससे दूर होते हैं। नबी पर जो वही नाजिल होती है, सिद्दीक शहादत कल्बी से उसकी तस्दीक करता है, उसके लिए उसे किसी दलील की ज़रूरत नहीं होती। जैसा कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वाक़यात में मौजूद है। अब मेराज का वाक़या हुआ, आप सब ने पढ़ा होगा, मुख्तसरन बता देता हूँ। अबू जहल और कुफ़ार मक्का, मुशरिकीन मक्का ने आपसे पूछा कि क्या ये कुछ लम्हात में आदमी बैतुल मुक़द्दस और फिर वहां से सिदरतुल मुंतहा पहुंच सकता है? तो सिद्दीक अकबर ने कहा ऐसा मुमकिन नहीं है। फिर पूछा आपका दोस्त जो है मोहम्मद ऐसा कहता है, तो फिर कहता है कि फिर मुमकिन है। ठीक है, तो सिद्दीक का मुशाहदा दूर से, नबी का मुशाहदा जो होता है करीब से होता है और सिद्दीक का मुशाहदा दूर से होता है। और उसके बाद शहीद का दर्जा है और उसे ये दर्जा दलाइल और बराहीन के साथ रियाजत और इबादत करने से हासिल होता है। और उसके बाद सालिह है, और सालिह वो है इसके कल्ब में करीने के साथ इत्मीनान पैदा होता है, इसके ज़रिए वो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करता है।
तो फरमाया जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की उसे इनाम याफ्ता लोगों की रफाकत नसीब होगी। वहसुन उलाइका रफीका, और इन लोगों की रफाकत निहायत ही अच्छी है। इसे नसीब हो जाए तो उसका बेड़ा पार है। इस रफाकत की तशरीह हदीस शरीफ में मौजूद है। वो इस तरह के बुलंद दर्जे वाले और निचले दर्जे वाली जन्नतियों की आपस में मुलाकातें होंगी, एक दूसरे की मुसाहबत हासिल होगी और आपस में गुफ्तगू होगी। सही हदीस में आता है कि हफ्ते में एक दिन यानी जुम्मे के रोज इताअत गुजार लोग इनाम याफ्ता लोगों से मुलाकात किया करेंगे। इस मुलाकात से निचले दर्जे वाला जन्नती भी इस कदर मुतमईन होगा कि वो अपने आप को आला दर्जे वाले मुनाम अलैहिम का हम एजाज ही समझेगा और उन पे ऐसी कैफियत तारी होगी कि वो अपने आप को कमतर ख्याल नहीं करेंगे। हालांकि उनके दर्जात में बहुत फर्क होगा, जितना जमीन और आसमान के दरमियान फर्क है। बहरहाल कमाल दर्जे की इताअत करने वालों को मुनाम अलैहिम की मईयत नसीब होगी। तो अच्छी मुआशरे का, अच्छी सोसाइटी का मिल जाना ये बजाते खुद बड़ी सआदत की बात है। दुनिया में भी अच्छी सोसाइटी का मिल जाना भी कोई नेमत से कम नहीं है, लेकिन आखिरत की ये पाकीज़ा सोसाइटी तो जन्नत और जन्नतुल फिरदौस वगैरह में नसीब होगी। इस दुनिया में तो इस इनाम का इंसान तस्वुर भी नहीं कर सकता। इसीलिए तो अंबिया अलैहिस्सलाम ने भी दुआ की, तवफ़नी मुस्लिमा व अलहिक़नी बिस्सालिहीन, ए अल्लाह मुझे इस्लाम पे मौत और सालिहीन की रफाकत नसीब फरमा। तवफ़नी मुस्लिमा कि मुझे मुसलमान बना के मौत देना और सालिहीन की रफाकत मुझे नसीब फरमाना। और यहाँ पर यह बात भी वाज़ेह कर दी जाए कि कादियानियों ने इस आयत करीमा से गलत इस्तिदलाल किया है। ये लोग काफिर और मुर्तद है और मलऊन फिरका है। उन्होंने इस आयत का तर्जुमा ये किया कि जो कोई अल्लाह और रसूल की इताअत करेगा वो नबी, सिद्दीक, शहीद या सालिह बन जाएगा। तो इस तरह वो मिर्जा गुलाम अहमद की नबूवत को साबित करने की कोशिश करते हैं। हालांकि आयत करीमा का मतलब बिल्कुल वाज़ेह है कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत गुजारों को इन चार इनाम याफ्ता गुरोहों की रफाकत नसीब हो जाएगी। सौबान रजी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा गुलाम थे। हदीस शरीफ में आता है कि एक दफ़ा सख्त बेचैनी की हालत में आपकी खिदमत में हाजिर हुए। आपने इस्तिरार की वजह पूछी तो अर्ज किया कि जब मैं इस दुनिया में अपने घर पे होता हूँ और बेचैन हो जाता हूँ तो आपकी ज़ियारत करके सुकून हासिल करता हूँ। अगले जान में नामालूम क्या सूरत हाल होगी। पहले तो ये कि मेरा जन्नत में जाना कतई मालूम नहीं, और अगर मैं खुदा की फजल से पहुंच भी गया तो मैं तो किसी अदना दर्जे में होऊंगा, जबकि आप इज्जत के बुलंद तरीन मकाम में होंगे। तो वहां आपकी ज़ियारत से अपनी आंखें कैसे ठंडी कर सकूंगा। तो उस पर यह आयत नाजिल हुई। इसी तरह हज़रत अबिया बिन काब अस्लमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम थे। सफ़र और हज़र में आपकी खिदमत अंजाम देते थे। एक रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया, नमाज पढ़ी, फिर रबिया से फरमाया कोई ख्वाहिश है तो बयान करो। तो उसने अर्ज किया कि मेरी तमन्ना यह है कि जब जन्नत में भी आपकी माइयत हासिल हो जाए। तो आपने फिर फरमाया अवग़ैर ज़ालिक, इसके अलावा कुछ मतलूब है। फिर अर्ज किया मेरी ख्वाहिश सिर्फ ये है कि आपकी रफाकत हासिल हो जाए। इस पर आपने फरमाया आइन्नी अला नफ्सिका बिकसरति सुजूद, अपने नफ्स के खिलाफ सजदों की कसरत के साथ मेरी मदद करो, यानी कसरत से नमाजें पढ़ा करो ताकि तुम्हारे अंदर लताफत पैदा हो जाए, तज़किया नफ्स हो जाए, और फिर मैं भी दुआ करूंगा तो अल्लाह ताला तुम्हें मेरी रफाकत जो है नसीब कर देंगे। इस किस्म के बहुत से वाक़यात इस आयत करीमा की शान नुज़ूल में बयान किए जाते हैं। फिर आगे फरमाया ज़ालिकल फ़ज़्लु मिनल्लाह, कि अम्बिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन की मईयत का हासिल हो जाना ये अल्लाह ताला की तरफ से फ़ज़ल है। इसे नसीब हो जाए ये अल्लाह ताला की ख़ास मेहरबानी और इनाम है। वकफ़ा बिल्लाहि अलीमा, और काफ़ी है अल्लाह ताला जानने वाला।
یہ چیز اللہ تعالیٰ کی علم میں ہے کہ کون شخص کتنے خلوص کا حامل ہے، اس میں ایمان اور تقوی کی کتنی مقدار ہے، لہذا ہر شخص کو اس کی حیثیت کے مطابق اس کا ثمرہ ادا کیا جائے گا۔ عالم کل جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی منعم علیہم کے راستے پہ چلائے اور ہمیں بھی ان کی رفاقت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔